नाउ इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट हम लोग डिफेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे। डिफेक्ट, तो डिफेक्ट्स में कैसा है, हियर मींस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, उसमें मेनली 3 पोर्शंस आर देयर। तो 3 में से अपने 2 हो गए। कौन कौन सा? स्टोइचियोमेट्रिक हो गया है, और ये impurity defect is completed. Stoichiometric as well as we can say that impurity defect is completed. Now third one is non-stoichiometric defect. Now we will discuss here non-stoichiometric defect. तो non-stoichiometric में क्या आता है? See, तो this defect discuss so far do not disturb stoichiometry. इसमें स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होता है ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। स्टोइचियोमेट्री मतलब जैसे देख स्कॉचकी था, है ना, उसके अंदर फ्रेंकल था, वहां पे केटायन जितना जाता है उतना ही एनायन, तो नंबर आता है, वैसे यहाँ है। तो हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड आर नोन which contain constituent element in non stoichiometric ratio. तो ये देखो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या आता है? हियर मींस सी नंबर विल कम इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप। एक आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी। हियर मेटल एक्सेस एंड देन आफ्टर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स विल बी देयर। तो फिर से बोल रहा हूं, सी हियर इनऑर्गेनिक मटेरियल विल कम एंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट is again related with respect to, तो non stoichiometric defect is again related with respect to number, and here means all type of inorganic material will come. तो यहाँ पे metal excess, तो metal excess में भी 2 टाइप है, due to anion है और due to cation है। क्लियर? तो now here see alkali halide like NaCl and KCl, alkali halide like NaCl and KCl shows this defect. Clear? तो when crystal of NaCl, अब इसमें होता क्या है? तो when crystal of NaCl are heated, मतलब डेल्टा, in an atmosphere of sodium vapor, क्या लेने का? सोडियम वेपर, the sodium atoms are deposited on the surface of the crystal. कहाँ पे आएगा? Surface of the crystal. Clear? Now Cl minus ion diffuse to the surface of the crystal and combine with sodium atom to give NaCl. Clear? So whenever diffusion phenomenon will take place, then this happen by loss of electron by sodium atom to give Na plus ion. The released electron diffuse into the crystal and occupy anionic site. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Anionic site, जो कि अभी फिगर बना के बता रहा हूँ। As a result, crystal now has an excessive of sodium atom. So due to this, what will happen? Here excess of sodium atom will be there. The anionic site occupied by unpaired electrons are known as F center. So this one is nothing but it is normally known as, here we can say that F center. So this one is known as F center. F center भी कैसा? तो यहाँ पे देखो from German word फॉर्मेशन फॉर कलर स्पेसिस। क्लियर? ये साइंटिस्ट का नाम है। एंड ड्यू टू दिस हियर व्हाट विल हैपन? दे इंपार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl, मतलब NaCl होगा तो येलो कलर विल बी देयर। द कलर रिजल्ट बाय एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन दे एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल। एंड जैसे NaCl है, ऐसे सिमिलरली व्हाट विल हैपन? हियर मींस Li से LiCl क्रिस्टल विल कम, है ना, एंड एक्सेस ऑफ पोटेशियम से ये KCl क्रिस्टल विल कम, जिसका कलर क्या होता है? वायलेट होता है। मतलब लिथियम के कलर में क्या आ जाएगा? पिंक, और KCl के कलर में क्या आ जाएगा? वायलेट आ जाता है। देखो पूरी की पूरी चीजें कैसे करने का? सी फॉर एग्जांपल दिस इज सोडियम क्लोराइड है, this one is again we can say that sodium chloride। यहाँ पे क्या लेने का? here we are using sodium vapor। as time will increases, as we can say that here means time will increases, then what will happen? As time will increases, then diffusion of chloride ion will start, मतलब क्लोराइड इधर से इधर जाएगा। as time will increase
तो here means what will happen? तो here see, देखो due to diffusion of chloride ion, यहाँ पे Na and then after Cl will come, और इधर से क्या हो गया, Cl निकल गया तो minus will be there. Clear? As we can say that time will start, or as time will increases, so diffusion of, we can say that chloride ion will start here. So due to diffusion of chloride ion, here as time will increases, the anionic vacancy is created. So due to creation of anionic vacancy, here means what will happen? The jumping and dropping of electron will start. So whenever jumping and dropping of electron will start, so here friction will be there, and due to friction, here means some radiations are emitted out, and due to this radiation, different type of wavelength will be there, and due to difference in wavelength, here different type of color can be seen. So this complete phenomenon is normally known as F center. Clear? तो फिर से बोल रहा हूँ, we are heating sodium chloride solid in the atmosphere of sodium vapor. As time will increase, as diffusion phenomenon will start, and chloride will diffuse from central part to upper one. तो यहाँ पे minus means anionic vacancy is created out. Here means NaCl will form. As we can say that time will increases, here means chloride will be diffused and anionic vacancy is created. So due to generation of anionic vacancy, here different type of color can be seen. तो सोडियम क्लोराइड है तो उसका कलर येलो होता है, लिथियम क्लोराइड है तो पिंक होगा, और पोटेशियम क्लोराइड है तो वायलेट होता है. क्लियर? अगर यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम Na plus 1 electron and same electron will be accepted by Cl. Here Cl minus will come here. तो आपके बुक में जो दिया है ना, देख फिनोमेनन तो यही है, तो आपके बुक में क्या दिया हुआ है, तो here we can say that, ये देखो ये है, ये देख एनायन की साइज क्या होती है, तो साइज ऑफ एनायन विल बी अगेन बिगर वन. एक केटायन, क्लियर हुआ? साइज ऑफ एनायन इज अगेन वी कैन से दैट बिगर वन. ठीक है, साइज ऑफ एनायन इज अगेन वी कैन से दैट हियर व्हाट विल हैपन, तो दिस इज बिगर वन, ये एनायन, क्लियर हुआ कि नहीं? साइज ऑफ एनायन इज बिगर वन. क्लियर? फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर ये देखो ये माइनस, एंड देन आफ्टर वी कैन से दैट प्लस, देन आफ्टर माइनस. सिमिलरली इधर पे आपका माइनस है ना, उसके बाद आपका नॉर्मली क्या आ जाएगा, हियर मींस प्लस, एंड देन आफ्टर अगेन वी कैन से दैट माइनस, और ये आपका प्लस. तो इन दिस वे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है, तो दिस इज अगेन मींस इलेक्ट्रॉन. तो दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी और दिस टाइप ऑफ फिगर कैन बी सीन इन केस ऑफ एफ सेंटर. बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है. एंड एफ सेंटर इज ऑलवेज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अल्कली मेटल. एफ सेंटर इज ऑलवेज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अल्कली मेटल. देखो आपको थोड़ा ध्यान से देखने का, कलर याद रखना. यहाँ पे जो NaCl है ना, NaCl देखो NaCl है, लिथियम क्लोराइड है, KCl. तो NaCl का कलर क्या होता है, येलो. लिथियम क्लोराइड का कलर क्या होता है, पिंक. और KCl का कलर क्या होता है, हियर वी कैन से दैट वायलेट. हियर मींस येलो, पिंक एंड वायलेट कलर विल कम. इट मींस कलर फॉर्मेशन फिनोमेनन इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अल्कली मेटल, मतलब ग्रुप 1 आ जाएगा. अब आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन. ये क्या था, ड्यू टू एनायन. अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस ड्यू टू, हियर वी कैन सी दैट केटायन. तो यहाँ पे देखो रिएक्शन है, तो जिंक ऑक्साइड is white in color at room temperature, and whenever we are heating thermodynamically, then it loses oxygen and turns yellow color. Here we can say that yellow color will come. So zinc oxide will give, here we can say that Zn plus 2 and half mole of O2 and 2 electron will be there. So now there is excess of zinc. Now there is excess of zinc in the crystal, and it's become formula. Here Zn1 plus X and O will be there. So here what will happen? So Zn plus 2 will be again present in excess 1 and move to interstitial side. Interstitial मतलब gap होता है, cavity होता है, and electron to the neighboring interstitial side. So interstitial मतलब तो gap which is present, gap which is again we can say that present between two or more than two
हियर वी कैन से दैट स्फेरिकल एटम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस वन इज नॉर्मली नोन एज इंटरस्पेशियल, और वी कैन से दैट cavity, or we can say that gap, or hole will be there. So this one is complete information of, we can say that here non-stoichiometric defect. Clear? Due to presence of metal excess defect. तो metal excess में due to anion आता है, and then after here we can say that cation will be there. Clear? Now we will discuss here metal deficiency defect. तो देखो इसके अंदर क्या आता है, जैसे हम लोग लिखते हैं FeO, तो this is not correct formula. FeO 0.938 0.95, मतलब आयरन का जो वैल्यू है ना वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है. ऑक्सीजन 1 है, here means per 1 oxygen defect of iron is 0.07 and here 0.05. इसी को बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी आएगा, इसमें क्या करने का, तो देयर आर मेनी सॉलिड, यहाँ पे सी, so there are many solid which are difficult to prepare in the stoichiometric composition, मतलब वो बनेगा ही नहीं, and contain less amount of metal. Here means amount of metal will be less as compared to stoichiometric proportion. A typical example of this type is FeO, which is mostly found with a composition of Fe.95O, and it may actually range from 0.93 to 0.95. In crystal of FeO, some Fe plus 2 cations are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe plus 3 ion. तो देखो यहाँ पे जो Fe है ना, Fe, तो this Fe is related with respect to plus 2 as well as we can say that plus 3 ion. So this Fe is related with respect to plus 2 and then after plus 3 ion, because in case of iron two variable valencies are, one we can say that 2 and then after 3 1. Clear? Now see solid state. Now we will discuss solid material on the basis of electrical property. So on the basis of electrical property, here means three different type of material will come: conductor, insulator and then after semiconductor. Clear? तो चलो यहाँ पे क्या करना है, सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो सॉलिड एग्जिबिट एन अमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो रेंज में एक्सटेंडिंग ओवर 27 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 10⁻20 to 10⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स. तो सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी. उसमें एक कंडक्टर आता है, एक इंसुलेटर आता है और एक सेमीकंडक्टर. एंड दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स कैन बी सेपरेटेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ इजी वैल्यू. तो कंडक्टर में कौन आएगा, द सॉलिड विथ कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁴ से 10⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स आर कॉल्ड कंडक्टर. तो ये मेटल हैव कंडक्टिविटी इन द ऑर्डर 10⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स आर गुड कंडक्टर. ये है मेटल का. देखो ये पार्शियली फिल्ड बैंड है, ये ओवरलैपिंग बैंड है. यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. वन वी कैन से दैट कंडक्शन बैंड एंड सेकंड वन इज वैलेंस बैंड इज देयर. तो नीचे वाला क्या वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला आपका क्या होता है कंडक्शन बैंड है. क्लियर? इंसुलेटर, तो दीज आर द सॉलिड विथ वेरी लो कंडक्टिविटी. इसका रेंज कितना है, तो रेंजिंग बिटवीन 10⁻20 से लेके 10⁻10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स. एंड दिस इज सेमीकंडक्टर. तो दीज आर द सॉलिड विथ कंडक्टिविटी इन द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10⁻6 से लेके 10⁴ आ जाता है ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स. इसको यदि मैं ऐसे बताऊं तो सी क्या करना है आपको, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लो, जैसे देख फॉर एग्जांपल लिथियम. तो लिथियम में कैसा हो जाएगा, सी, तो दिस वन इज अगेन वी कैन से दैट लिथियम. तो Z इज 3, तो 1 is 2, 2s1 2p. तो यहाँ तक का जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस वन इज अगेन Vb and this one is again Cb. Vb means वैलेंस बैंड, Cb मतलब कंडक्शन बैंड. और इसके बीच की जो वैल्यू होती है Eg को बोलते हैं एनर्जी गैप.
तो on the basis of this energy gap, three different type of material will come. ये आता है कंडक्टर, ये आता है इंसुलेटर और ये आता है सेमीकंडक्टर. In case of conductor, Eg will be minimum, इंसुलेटर में मैक्सिमम और सेमीकंडक्टर में मीडियम. तो दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर, मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. क्लियर? समझ कि नहीं? हियर इलेक्ट्रॉन कैन जंप, हियर इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम Vb टू Cb, हियर इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम Vb टू Cb. तो सब चीजें इधर आ जाती है. ठीक है. अब आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल. तो सी metals are always we can say that good conductor, metals are always we can say that here means good conductor. यहाँ देखो a conductor में conduct electricity through movement of electron. इसमें क्या होगा? movement of electron और ions are there. तो metallic conductor belong to this former category and electrolytes to be the later one. Clear? यहाँ क्या है? a conductor may conduct electricity थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसमें होगा? मेटल में होगा. और आयंस किसमें होता है? इलेक्ट्रोलाइट में होता है. क्लियर? तो नाउ मेटल, ये मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट. मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट. द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन available per atom. The atomic orbital of metal atom form molecular orbital which are so close in energy to each other as to form a band. तो band किसको बोलते हैं हम लोग? देखो ये जो है ना, ये तो this one is nothing but it is normally known as band. ये जो आएगा तो this is nothing but it is we can say that band. देखो ये क्या है? तो this is valence band, this is conduction band. और बीच का जो गैप होता है उसके ऊपर सब मेटल मतलब कंडक्टर आएगा, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. तो नाउ हियर सी, तो बैंड, इफ दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड और ओवरलैप विथ हायर एनर्जी अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड, then electrons can flow easily under an applied electric field and metal shows conductivity. इसमें कौन सा आएगा? This is conductivity, figure A. तो ये है figure A related with respect to metal. If the gap between filled valence band and next higher unoccupied band, conduction band, is large, then electron cannot jump to it, and such a substance has very small conductivity and it will behave as a insulator. ये क्या है? ये इंसुलेटर है. क्लियर? उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा? 50-50. न तो गैप ज्यादा होगा न तो कम होता है. तो इन दिस वे देख, अभी तक हम लोग ने पूरे चैप्टर में क्या बताया? सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से दैट सॉलिबिलिटी. तो एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन हो गए, है ना. उसके बाद सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, तो मेटालिक आएगा, आयनिक आता है, कोवलेंट आता है, मॉलिक्यूलर आएगा, वो सब आ गया. उसके बाद सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल. साइड मतलब ABC एंड एंगल मतलब अल्फा, बीटा, गामा, वो सब आ जाएगा. क्लियर? उसके बाद सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कैसा आता है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हियर मींस कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर. सिमिलरली हियर वी कैन से दैट सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. वो लास्ट टॉपिक है. क्लियर? तो मैग्नेटिक में क्या आता है? पैरामैग्नेटिक एज वेल एज वी कैन से दैट डायामैग्नेटिक. तो आपको ना यहाँ पे सबकी इजी वैल्यू याद रखना है. व्हाट विल बी इजी वैल्यू इन केस ऑफ मेटल, देन इंसुलेटर एंड देन सेमीकंडक्टर. क्लियर? अब चलो, जैसे मैं आपको बोलूं कि आउट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम which one is again we can say that good conductor. Out of sodium and here we can say that magnesium, which one is again we can say that good conductor, है ना. तो चलो देखो, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ पे 1 2 3, क्लियर? 1 2 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है. क्लियर हुआ कि नहीं? तो चल अभी ये 2p6 1 2 3 1 2 3 इज देयर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C. ये 6 इलेक्ट्रॉन है. इन केस ऑफ सोडियम, whenever we are heating, ध्यान से सुनना, then this electron can jump
from here to here, and in case of magnesium, one electron can jump from here to here. In case of sodium, your material will be conductor for short interval of time, but magnesium is conductor for permanently. So why it is conductor for short interval of time? Because whenever electron will jump from 3s to 3p, then this orbital will become vacant. While in case of magnesium, out of these two electron, one will jump from 3s to 3p. Clear? So permanently magnesium is good conductor, and sodium is, again we can say that here we can conductor but for short interval of time. So this is, we can say, the reason. So this type of things are, again we can say that, come here. तो इसमें क्या करने का, इलेक्ट्रिसिटी में आपको बैंड पता होना चाहिए, बैंड. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाले को VB, इसको क्या बोलते हैं, CB. और VB और CB के बीच में जो गैप होता है ना एनर्जी का, उसी को हम लोग बोल देते हैं EG. तो व्हाट इज EG? EG मतलब एनर्जी गैप आता है. See, so this one is VB and this one is CB, और ये आ गया EG. तो EG वैल्यू के ऊपर से इधर क्या आएगा, हियर कंडक्टर, इधर पे इंसुलेटर, और इधर सेमीकंडक्टर. क्लियर? तो कंडक्टर में EG वैल्यू विल बी मिनिमम, इंसुलेटर में मैक्सिमम, and here we can say that medium will come. Here we can say that medium will come here. इतना सब आपको ध्यान से देखना है. क्लियर हुआ कि नहीं?